So today we are going to understand the concept of access modifiers in Java. So what exactly an access modifier is? It specifies the accessibility scope of a data member, methods, constructor or a class. Data members क्या होते हैं? जो हम क्लास के अंदर ये वेरिएबल्स डिक्लेयर वगैरह कराते हैं, इंटीजर ए, फ्लोट बी, डबल डी या स्ट्रिंग नेम, दीज आर कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स. Methods पता है आपको क्या होता है? Constructors and a class. So you can use these access modifiers with data members, method, constructor or a class. और ये बताते क्या है? It specifies the accessibility, scope या visibility. आप इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हो. ये accessibility, scope या visibility बताते हैं आपके members की, methods की, constructor की और class की. So basically there are 4 types of Java access specifiers: private, then we have protected, public, and last we have a default. So let's understand one by one. So let's get started with our private access modifier. So what exactly this private access modifier do? It is accessible only within a class. Suppose you have a class. Take the example लेता हूँ. Let's suppose a class है 1. In this class you have declared a data member as a private into A, and you have declared a method with a private keyword private void, let's say show. This is the name of your method. So this method show and this variable A is only accessible within this class only. So this is a usage of our private access modifier. So let's understand it with the help of an example. So let's say मेरे पास एक class है यहाँ पर main. Here I am declaring in another class called as 1. In this class I am going to declare a method called as private void show. Now I am giving the definition of this show और मैं तो कोड या बॉडी बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है. So let's say मैं एक लाइन इसके अंदर प्रिंट करता हूँ. I am of type. So let's say मैंने इसके अंदर एक लाइन लिख दी. So what I will do with the help of extends keyword, मैं इस क्लास की प्रॉपर्टीज इस मेन के अंदर करा लेता हूँ extend या inherit. So मैंने यहाँ पे लगाया extends keyword और यहाँ पे क्या लगाया main. So now कल हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो उसमें ये एक्सटेंड्स कीवर्ड किस लिए लगाते थे? ताकि इस क्लास की प्रॉपर्टीज इस क्लास के अंदर आ जाए. Means कि show method is now easily accessible within this main, but this show method is right now is a private. So let's understand this terminology. So मैंने एक main का object बनाया, main obj is equal to new main, and with the help of this obj I am going to call this method show. So now as you can see that it is giving me an error. और error क्या दिखा रहा है? That method is show में मतलब कुछ एक error. So let's say एक बार alt enter करके इसकी proper definition देखते हैं. इसका मतलब ये show method मिल ही नहीं. ये show method इसके ये मतलब access क्यों नहीं कर पा रहा? Because it is of type my private, and this method is only and only accessible within this class. इसके बाद ये इसके लिए बाहर वाली क्लास होगी नहीं. Still मैंने आपने देखा कि मैंने extends करा ली property, still it is not able to access this class. Understood the concept of private? If I declare it as a public, so then it is accessible. If I save this program and execute it, so now you can see that this program is running. But अगर मैंने क्या बनाया था private, तो आप इसको कॉल नहीं कर सकते. हाँ, एक और सिनेरियो आता है प्राइवेट में. लेट्स से इस क्लास के अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, प्राइवेट इंटीजर आईडी, ओके, और प्राइवेट स्ट्रिंग. These are my 2 variables of private type.
एक ये है इसका इंटीजर टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप का, और मैंने इसके सामने एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया किस टाइप का, प्राइवेट टाइप का। सुनो, अब आपको पता है कि ये जो आईडी है और ये जो नेम है ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक्सेसिबल है विद इन दिस क्लास ओनली। अगर मैं अब मैंने आपको सिनेरियो दिया कि यार मेरे को ये जो आईडी और नेम है ना विद इन दिस क्लास के अंदर एक्सेसिबल कराना है, मतलब इनकी वैल्यूज जो है मैं यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा एक ऑब्जेक्ट बना के, वो वैल्यू इसके पास आ जाए और ये एक्सेसिबल हो जाए। तो ये किस तरीके से होगा, आईडी और नेम विद द हेल्प ऑफ, so let's say I am going to create a method called as, चलो इसी को मैंने नाम दे दिया public void show। तो this time I am making it as a parameterized method। parameterized method बनाने से मैंने ले लिया इंटीजर i और एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने n। सो अब मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरे को i में वैल्यू आएगी वो मैं किसको भेज दूंगा, अपनी id को, और जो मेरे पास n में वैल्यू आएगी वो मैं दे दूंगा अपने नेम को। और यहाँ पे लेट्स से मैं क्लाइंट लिखवा देता हूँ दैट आईडी क्या होगी मेरी, आईडी, और एक और चलो कंकैटिनेशन में रख देते हैं इसको, और यहाँ पर रखता हूँ नेम। अब ध्यान से देखो कि मेरे पास जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं वो क्या है, आईडी और नेम, बट ये मेरा मेथड क्या है, पब्लिक। सो आई कैन इजीली कॉल दिस मेथड है, आराम से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर एरर देगा क्योंकि मेरे को उसमें दो पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। सो लेट्स से मैंने आईडी दे दी और एक नेम दे दिया इससे। अब मैंने कहा कि इसको सेव और लेट्स से इसको कराते हैं एग्जीक्यूट। आईडी आ गई 1 2 3 और नेम आ गया जावा। वेरिएबल्स क्या थे मेरे, प्राइवेट टाइप के, बट वो कॉल कहाँ पर हो रहे हैं, विद इन दिस क्लास, क्योंकि ये जो मेरा मेथड है शो, चलो मान लिया कि पब्लिक टाइप का है, बट ये कॉल किसको कर रहा है, आईडी को और नेम को। हाँ, ये मेथड इस आईडी और नेम को इजीली एक्सेसिबल कर सकता है, क्यों, बिकॉज दे आर विद इन सेम क्लास, सेम क्लास के अंदर है, तो ये इजीली कॉल कर सकता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आए कि आपको मतलब वेरिएबल प्राइवेट है और उनको यू हैव टू कॉल फ्रॉम अनदर क्लास, सो आप किस तरीके से कर सकते हो, एक मेथड बना सकते हो विच इज ऑफ टाइप public, and this method can access this private integer id and this private string name. So this is the concept of my private access specifier. So next access modifier is protected access modifier. ये protected access modifiers हम basically कब use करते हैं, when we are dealing with the packages. So इसकी एक मैंने common definition यहाँ लिखी है that this protect access modifier is accessible only within package and outside the package, बट थ्रू इनहेरिटेंस ओनली। अभी जब मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आप आओ, दैट द प्रोटेक्ट एक्सेस मॉडिफायर कैन बी अप्लाइड ऑन द डेटा मेंबर मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। मींस यू कैन यूज दिस प्रोटेक्टेड कीवर्ड विद डेटा मेंबर मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर, बट यू कैन नॉट यूज दिस प्रोटेक्ट एक्सेस स्पेसिफायर विद अ क्लास। क्लास के साथ आप प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं कर सकते, बट हाँ अगर you are working with the data member methods or constructor, then you can deal with this protected access specifier. इसकी एक और डेफिनेशन जो मैंने बताई है, that this is accessible within the package, मतलब अगर एक पैकेज के अंदर प्रोटेक्टेड है तो पूरे पैकेज में कहीं पे भी एक्सेसिबल है, सही है। आउटसाइड द पैकेज से भी एक्सेसिबल है कि एक पैकेज के अंदर, मतलब मेरे पास है लेट्स से एक पैकेज है मेरे पास माईपैक के नाम से, इसके अंदर लेट्स से मैंने एक मेथड बना रखा है प्रोटेक्टेड के नाम से, प्रोटेक्टेड void, लेट्स मैसेज के नाम से मैंने एक मेथड बना रखा है और इसके अंदर मेरी कुछ कोड है। तो ये मेरा लेट्स से एक पैकेज 1। इसके बाद लेट्स से मैंने एक और पैकेज बनाया, लेट्स से दिस इज माय सेकंड पैकेज, मैंने इसको नाम दे दिया, पैकेज ही नाम देता हूँ चलो। नाउ आई कैन कॉल दिस मैसेज इनसाइड दिस पैकेज विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस और विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टेड कीवर्ड। मतलब ये जो प्रोटेक्टेड वाला वर्ड मैसेज है ये आउटसाइड द पैकेज के अंदर भी एक्सेसिबल हो पाएगा। सो इसको एक बार प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सो मैंने क्लास बनाई है सेकंड के नाम से, जिसके अंदर मेरा पब्लिश वॉइड में एक मेथड है, उसके ऊपर मैंने एक और क्लास बनाई। अगर मैं इसके टाइप अब सामने लगा दूँ प्रोटेक्टेड कीवर्ड,
so it will give me an error, क्योंकि मैंने definition में बताया था that it can't be applied on the classes. So let's understand the protected access specifier with the help of our packages. So मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ. Here I am going to create another package. मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैकेज इसमें बनाता हूँ. ऐसे सोर्स पैकेज को मैंने सिलेक्ट किया, न्यू पे गया और एक नया पैकेज बना रहा हूँ और इस पैकेज का मैंने नाम दे दिया माई पैक. ये मेरे पैकेज का क्या हो गया, नेम. क्लिक ऑन फिनिश. अब आपको दिख रहा है माई पैक इज इन ग्रे, मतलब अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है. इन दिस आई हैव टू क्रिएट अ क्लास. सो लेट्स से इसको मैंने सिलेक्ट किया, न्यू पे गया और क्या सिलेक्ट करूँगा, जावा क्लास. एंड द नेम ऑफ माई क्लास लेट्स से मैंने दे दिया टेस्ट. क्या नाम दे दिया मैंने अपने क्लास का, टेस्ट. क्लास का मैंने अपना नाम दे दिया. क्लिक ऑन फिनिश. सो अब आप देख सकते हो विद इन दिस पैकेज माई पैक आई हैव अ क्लास टेस्ट और इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया ऑफ प्रोटेक्टेड टाइप. प्रोटेक्टेड void मैसेज और इसके अंदर एक सिंपल लाइन मैंने लिख दी, हेलो आई एम इन टेस्ट क्लास. लेट्स से मैंने ये लाइन लिख दी दैट हेलो आई एम इन अ टेस्ट क्लास विच इज प्रेजेंट इन माई पैक के पैकेज में. ओके, सो इसको मैंने कर दिया एक बार सेव. अब ये जो मैसेज है मैं कॉल कराना चाहता हूँ इस पैकेज वाले अंदर, मतलब इस पैकेज 25 वाले अप्रैल के अंदर एक क्लास है मेरी सेकंड डॉट जावा, इसके अंदर मैं कॉल करा सकता हूँ, कॉल कराना चाहता हूँ. तो पहला स्टेप क्या रहता है इस पैकेज को कॉल कराने के लिए, बताओ. कराना क्या चाहता हूँ, ये टेस्ट डॉट जावा मेरे कौन सा वाले पैकेज के अंदर है, टेस्ट डॉट जावा है. मैंने किस पैकेज, क्या नाम है उस पैकेज का, इसको मेरे को कॉल किसके अंदर कराना है, सेकंड डॉट जावा में. और ये जो सेकंड डॉट जावा है ये कौन सा पैकेज के अंदर अवेलेबल है, सही है. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड. यहाँ पे करूँगा माई पैक, द नेम ऑफ माई पैकेज इज माई पैक डॉट स्टार. मैं आपको किस तरीके से होगा डेफिनेशन पढ़ना, ये क्या कह रहा था. यहाँ पर एक लाइन थी दैट इट कैन एक्सेसिबल विद इन पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज बट थ्रू इनहेरिटेंस ओनली. तो इनहेरिटेंस को मेरे को परफॉर्म करनी पड़ेगी. सो लेट्स से यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाऊंगा और किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, कौन सी क्लास की, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा टेस्ट. नाउ I am going to create an object of this second class, second obj is equal to new, and with the help of this object I can call my method called as message. ये मैसेज यहाँ पर है इस क्लास के अंदर कहीं पे, कहाँ पर है ये, आया कंसेप्ट समझ पैकेजेस का. इसको मैंने कर रहा हूँ एक बार सेव और लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. हेलो आई एम इन अ टेस्ट क्लास विच इज प्रेजेंट इन माई पैक पैकेज के अंदर. अब लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ बाय चांस प्राइवेट. क्या कर दिया मैंने इसको, अब प्राइवेट. अब इसको मैंने किया सेव और इस पर आके देखते हैं एरर. क्यों है एरर, क्योंकि इट इज अ प्राइवेट एंड इट इज एक्सेसिबल विद इन दिस क्लास ओनली. हाँ, अगर ये पब्लिक होता देन इट कैन वर्क. पब्लिक और प्रोटेक्टेड. ऐसे अब मैंने इसको किया, एरर हो गया मेरा रिजॉल्व. अब मैं इसको ना पब्लिक दूं, ना मैं इसको प्रोटेक्टेड दूं, ना मैं इसको प्राइवेट दूं. मैंने क्या दे दिया इसको, एक वॉइड मैसेज. तो मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर इसके सामने स्पेसिफाई नहीं किया. इसको मैंने सेव किया यहाँ पर, फिर मेरे एरर. सो आइदर इट हैज टू बी अ पब्लिक और अ protected. So this is the concept of my protected keyword. इसको सेव कर देते हैं. So the next
we have a default access modifier. So what exactly this default access specifier is, if you do not use any modifier, neither private, protected or a public, then it will be treated as a default access specifier. जावा में अगर आप पब्लिक नहीं लगा रहे, प्रोटेक्टेड नहीं लगा रहे, प्राइवेट नहीं लगा रहे, देन इट इज ट्रीटेड एज अ डिफॉल्ट. और इसके बाद एक और डेफिनेशन है दैट दिस डिफॉल्ट मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन अ पैकेज. तो इसको एक बार समझते हैं ध्यान से. मैंने क्लास बनाई एक्सेस एग्जाम्पल के नाम से और इसके अंदर एक मेथड है मैसेज के नाम से. अब यहाँ पर नाइदर आई एम यूजिंग एनी एक्सेस स्पेसिफाई, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कुछ यूज़ नहीं कर रहा. अब ये क्या होगा, मेरा डिफॉल्ट मेथड बाय डिफॉल्ट क्या एज अ ट्रीट करेगा उसको जावा एज अ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर. सो इन ऑर्डर टू कॉल दिस मेथड यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इसको बनाना पड़ेगा. सो लेट्स से दिस इज द नेम ऑफ माय क्लास, obj is equal to new and with the help of this obj now you can simply call this method. इस पे बस सेव करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. हेलो आई एम डिफॉल्ट. सो पहली डेफिनेशन आपको क्लियर है कि अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करते हो इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्ट, जो मैंने लिखवाई थी. If you don't use any modifier, it is treated as a default by default. Next line क्या आती है? The default modifier is only accessible within package. Means ये जो मैसेज मेथड है ये पूरे इस पैकेज के अंदर कहीं पे भी एक्सेसिबल हो जाएगा, कहीं पे भी एक्सेसिबल हो जाएगा. So let's understand it with the help of an example. So मेरी एक main.java फाइल खोल लेते हैं. सेकंड इसी के अंदर है ना, इसको बंद कर लेता हूँ. Let's say यहाँ पर है मेरा एक्सटेंड्स करा लेता हूँ एक्सेस एग्जाम्पल. ओके, एक्सेस एग्जाम्पल मैंने करा लिया और ये मैसेज देख रहे हो आप, स्टिल इट इज एक्सेसिबल विद इन दिस पैकेज. इसको मैंने सेव किया और एग्जीक्यूट कराया. हेलो आई एम डिफॉल्ट. सो मैंने बताया कि इट इज एक्सेसिबल विद इन द पैकेज ओनली. बट नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं इसको टेस्ट डॉट जावा के अंदर कॉल कराने की कोशिश करता हूँ. मीन्स ये टेस्ट डॉट जावा है, इसके अंदर एक मैंने मेथड बनाया और उसके सामने कोई एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं किया, नाइदर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और इस सेकंड डॉट जावा में सबसे पहले मैं इनहेरिट कराता हूँ किसको, टेस्ट को. और यहाँ पर एक पैकेज इंपोर्ट कराता हूँ, इंपोर्ट my pet.star. Now you can see that here it will give me an error, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन में आपको यही बताया था that it is accessible only within a package. Outside the package, this default keyword will not going to work. So this is the concept of my access modifiers. Private भी आपको समझ में आ गया, protected, public and default.